ہم لائیو ہو چکے ہیں۔ صدر محترمہ کی اجازت سے تقریب کی باقاعدگی شروعات کی جاتی ہے۔ میں حمید گوہر، لالو گوہر عالمی ادبی فاؤنڈیشن کے صدر کی حیثیت سے تمام اپنے مہمانان کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر لالو گوہر کی عظمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ تمام مہمانان کے استقبال کے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام سر سید ڈے کے سلسلے کی دوسری کڑی کے طور پر ہے۔ شریک محفل شخصیات کی لسٹ فہرست جناب نیاز راجپوری صاحب نے ہمیں مہیا کرائی تھی، جس کے لیے ہم ان کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں۔ ہم لالو گوہر ٹیم کے لیے ان کے اس تعاون کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات خاص طور سے بتانی ضروری ہے کہ لالو گوہر 6 سال سے سوشل میڈیا پر اپنی ادبی کاوشات سنجیدہ ادب کی ترویج و اشاعت کے تعلق سے انجام دے رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر 6 سال قبل پہلا ہفت روزہ ای میگزین نکال کر اس نے شروعات کی تھی، جس کے تحت تقریباً 30 خاص نمبر سوشل میڈیا پر محفوظ ہیں لالو گوہر کی جانب سے، جس میں پروفیسر مظفر حنفی صاحب اور ایسی انتہائی معتبر کئی عالمی شخصیات پر وہ گوشے محفوظ ہیں۔ ملک و بیرونی شخصیات پر کئی گوشے جاری کیے گئے ہیں، جس میں ظفر شہبائی، معین شاداب صاحب، عطا عبدی صاحب، علینا عطرت صاحبہ، سلمہ شاہین صاحبہ اور ایسے بے شمار شخصیات پر نمبر نکالے گئے۔ لالو گوہر نے صوبائی تعطل کے دوران اپنی ادبی سرگرمیوں کی شروعات کی، آن لائن سرگرمیوں کی شروعات کی۔ 2 سال سے آن لائن پروگرام کیے جا رہے ہیں، جس میں ملک و بیرون ملک کی کئی شخصیات پر مشتمل کامیاب پروگرام کیے جا چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پر لالو گوہر ایک واحد پلیٹ فارم ہے جس کی مختلف شہروں میں ادبی اکائیاں سرگرم ہیں اور آن لائن پروگرام پیش کر رہی ہیں، جس میں بھوپال کی ادبی اکائی جو بھوپال کی ادبی مہک نام سے ایک پروگرام ہفت روزہ کیا جاتا ہے، جس کو ملک کی بہت ہی معروف شاعرہ اور ناظمہ محترمہ ڈاکٹر امبر آبی صاحبہ بھوپال کی ادبی مہک کے نام سے چلاتی ہیں، انجام دیتی ہیں۔ 1 گھنٹے کا وہ پروگرام ہوتا ہے، جس میں ایک شخصیت کے انتخاب اور ان کی فن و شخصیت پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی طرح مظفر نگر اکائی اپنا کام کر رہی ہے، جسے ملک کے بہت ہی انتہائی معتبر شاعر اور ناظم جناب ریاض ساغر صاحب وہاں سے مظفر نگر کے جواہر پاروں کے نام سے ایک آن لائن پروگرام کرتے ہیں 1 گھنٹے کا۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود محترمہ سنگیتا شری واستو صاحبہ چھندواڑہ سے ادب کے جھروکوں سے ایک اکائی چلا رہی ہیں۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ شہر کے ملک کے قابل ذکر ادبی مراکز پر تحقیقی کام ریسرچ اسکالروں کے لیے محفوظ کر سکے۔ ایسا ہی کام ہم علی گڑھ کے تعلق سے کرنا چاہتے ہیں اور یہ اسی پہل کا ایک حصہ ہے۔ میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے تمام مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پروگرام کو تاخیر سے بچاتے ہوئے آج کی بہت ہی ہماری ناظمہ محترمہ جو لائق صدر احترام ہے، بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ آج کے اس پروگرام کو ملک کی عالمی شخصیت محترمہ عذرا نقوی صاحبہ ناظمہ کے طور پر ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنی ہیں، جو ایک کامیاب مترجم ہیں اور آپ کی 8 کتابیں عالمی طور پر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ کینیڈا اور سعودی عرب میں کئی سالوں تک درس و تدریس کا فریضہ آپ نے انجام دیا ہے اور ان دنوں عالمی تنظیم ریختہ سے وابستہ رہ کر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے ممنون و مشکور ہیں اور شکر گزار ہیں لالو گوہر ٹیم کی جانب سے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام کو اعتبار بخشا۔
बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि सदर मोहतरमा की इजाज़त से प्रोग्राम को आगे के लिए नाज़िम मोहतरमा ले जाएं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे लालो गौहर इल्मी और अदबी फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करने दीजिए। बहुत खूबसूरत नाम है आपके फाउंडेशन का। लालो गौहर आप खुद भी हैं और लालो गौहर जमा भी करते रहते हैं अपने प्रोग्रामों के जरिए। बहुत शुक्रिया आप चारों का। मैं आपके नाम से ही वाकिफ हूँ। मैंने लिखा है अब्दुल हमीद गौहर साहब, जावेद खान साहब, सैयद रिजवान अली साहब, संगीता श्रीवास्तव साहिबा और शाहनवाज गौहर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अलीगढ़ की खवातीन शायरात पर मबनी है। बहुत ज्यादा तादाद नहीं है, ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ में और शायरात नहीं है, लेकिन आज ये बड़ी मगर जो आज हमारे साथ जमा है वो बहुत मोतबर हैं और अलीगढ़ से भी उनका इतना ही गहरा ताल्लुक है और अदब से भी उतना ही गहरा ताल्लुक है। ये फेसबुक से नई बनने वाली शायरात नहीं है, ये बरसों से अदब की खिदमत कर रही हैं। अदब इनका ओढ़ना बिछौना है। तो मैं आज की सदर है हमारी, मैं मुख्तसर तारुफ अभी करा देती हूँ। सदर है मोहतरमा हमारी बहुत बहुत ही अच्छी प्यारी आसिफ इजहार साहिबा, हमारी सीनियर है। अलीगढ़ में सीनियर और जूनियर का बहुत बहुत एहतराम किया जाता है, यानी कि ये फर्क जो है ये एक रिश्ता है जिसको हम बहुत अच्छी तरह निभाते हैं और बहुत शौक से निभाते हैं। तो आसिफ इजहार साहिबा आज की सदारत कर रही हैं। हमारी एक खास मेहमान है नईमा जाफरी साहिबा, डॉक्टर नईमा जाफरी, और सबिहा सुंबुल जानी मानी शायरा, वो भी मौजूद है। मैं अजरा नकवी और एक हमारी नई शायरा जो अलीगढ़ में जेर तालीम है, खुशनुमा फातिमा। तो आज के प्रोग्राम में अब क्या है, मैं समझती हूँ कि हमारे पास 1 घंटा 10 मिनट है और हम 5 लोग हैं, तो कम से कम हम 2-3 चीजें सुना सकते हैं अपनी। तरन्नुम वाले जरा ज्यादा वक्त लेते हैं, मुझे अंदाजा है कि तरन्नुम से पढ़ने में तकरीबन 7 मिनट लगते हैं, तो हम 2-3 चीजें पेश करने की कोशिश करेंगे और सुनेंगे। और बीच में मैं कुछ अलीगढ़ की जो पुरानी शायरात हैं उनके बारे में बीच बीच में मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पेशरो जो हैं उनका जिक्र करें, क्योंकि सर सैयद जे का पूरे दुनिया में मनाया जाता है, बहुत जज्बाती तरीके से मनाया जाता है, और आज भी हम सर सैयद को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। मुझे पहले एक नाम लेने दीजिए अलीगढ़ के हवाले से, एक शायरा का जो 1 सदी पहले पैदा हुई थी 1884 या 94 में, ज़े-खे शीन, यानी उनका नाम पूरा भी नहीं लिया जाता था, जाहिदा खातून शेरवानिया, और वो बहुत ही कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया 1922 में। और उनका जो मजमू, वो ऐसी शायरा थी कि जिनके बारे में सज्जाद हैदर यलदरम ने कहा था कि बुलबुल थी जो कफस में पैदा हुई, वहीं चहचहाई और वहीं खत्म हो गई। वो इस किस्म की शायरी उनका जो मजमूए कलाम था, उनकी बहन अनीसा शेरवानी ने बहुत बाद में छपवाया, तो वो लोगों के सामने आया। वो अखबारों में लिखती थी, वो रिसालों में लिखती थी, लोगों को मालूम नहीं था कि ज़े-खे शीन कौन है। खानदानी दबाव था। एक तो उनके वालिद सर सैयद के बहुत दस्तराज रफीक कार सर नवाब मुजम्मिल खान साहब थे। मुजम्मिल मंजिल आज भी अलीगढ़ में है। तो मैंने ज़े-खे शीन साहिबा का जिक्र यूं करना चाहती हूँ कि वो आज तानीसियत की बात आज होती है, लेकिन वो जब उन्होंने खवातीन, कौम की खवातीन, मुल्क की खवातीन की हालत ज़ार पे लिखा, उन्होंने आज़ादी पे लिखा, उन्होंने अंग्रेजों की पॉलिसी के खिलाफ लिखा, उन्होंने नेचर पे लिखा, उन्होंने नेपोलियन पे लिखा, जबकि उन्होंने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि उनके खानदान में कॉलेज में पढ़ाने का रिवाज नहीं था। लेकिन इतनी काबिल खातून थी, और अब उनके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं और रिसर्च की गई है। तो उनके जिक्र से मैं आज का प्रोग्राम शुरू करती हूँ।
اور سب سے پہلے اس وقت علی گڑھ میں زیر تعلیم ہماری ایک نئی شاعرہ ہیں خوشنما فاطمہ. خوشنما فاطمہ کو میں دعوت سخن دوں گی. یہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. میں نے پوچھا ان سے معلوم کیا غلام ربانی طابہ صاحب کے اوپر, اور بہت ہی زبردست شاعر تھے وہ. اور ان کے جو گائیڈ ہیں پی ایچ ڈی کے وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں, مہتاب نقوی صاحب. تو علی گڑھ کے جتنے نام آ جائیں اچھا ہے. تو میں سب سے پہلے خوشنما فاطمہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنی ایک نظم اور ایک غزل عطا کرے. خوشنما فاطمہ یہ بلند شہر کی رہنے والی ہیں, علی گڑھ میں تعلیم کے سلسلے میں مقیم ہے. کیا نہیں ہے خوشنما؟ ہاں خوشنما. ابھی انہوں نے علی گڑھ میں مشاعرہ ہوا سر سیدے کا ابن سینا اکیڈمی میں, وہاں بھی پڑھا. تو سمجھیے یہ ان کا دوسرا مشاعرہ ہے. خوشنما آپ ہیں یہاں پر؟ اپنا مائکروفون آن کیجئے خوشنما. جی جی مشاعرہ دوسرا ہی ہے, لیکن آن لائن پڑھنے کا پہلا ہی اتفاق. ہاں ضرور ضرور, موسٹ ویلکم. خوب دل سے پڑھیے آپ. جی تو میں پہلے نظم سناؤں یا غزل, آپ بتا دیجیے. آپ نظم سنائیے, غزل بھی سنا دیجیے. حضرافا نے بھی کہا دونوں سنائیں گی آپ یقیناً. جی بالکل. جی تو میری غزل کا عنوان ہے حیرت ہے. حیرت حیرت ہے. حیرت ہے. جی جی ارشاد. نہ جانے کیوں میرے دل میں, نہ جانے کیوں میرے دل میں عجب سی بے قراری ہے. نہ جانے کیوں میرے دل میں عجب سی بے قراری ہے. عجب سی بے قراری ہے. عجب سی کیفیت میں ہوں, عجب سی کیفیت میں ہوں, عجب وحشت سی طاری ہے. عجب ہیں دھڑکنے دل کی, عجب ہیں دھڑکنے دل کی, عجب بے خودی چھائی ہے. عجب ہے رنگ آنکھوں کا, عجب ذہنی توازن ہے. عجب ماحول سائق ہے, عجب ہے جام محفل کا, عجب پاگل سا ساقی ہے. عجب پاگل سا ساقی ہے, عجب سے لوگ محفل کے, عجب ویراں سی محفل ہے. عجب ہے رنگ دنیا کے, عجب پتجھڑ کا موسم ہے. عجب ہے رنگ دنیا کے, عجب پتجھڑ کا موسم ہے. عجب رنگت ہے شاخوں کی, عجب رنگت ہے شاخوں کی, عجب ہے آب شبنم کا. عجب ہے آب شبنم کا, عجب ہے راگنی گل کی. عجب ہے حال طائر کا, عجب اجڑے گھروندے ہیں. سوچیے میں دوبارہ پڑھتی ہوں اس لائن کو. عجب بے حال طائر ہیں, عجب اجڑے گھروندے ہیں, عجب دریا کی موجیں ہیں, عجب دریا کی موجیں ہیں, عجب اس کی روانی ہے. عجب بے رخ ہوائیں ہیں, عجب بے رخ ہوائیں ہیں, عجب سورج کی گرمی ہے. عجب سورج کی گرمی ہے, عجب سے ماہ و کوکب ہیں. عجب سے ماہ و کوکب ہیں, عجب سی کچھ کہانی ہے. عجب سی سوچ میں گم ہوں, عجب سی سوچ میں گم ہوں, عجب لفظوں کا موسم ہے. عجب سی قلم کی سیاہی, عجب کاغذ پہ بکھری ہے. عجب لکھنے کی کوشش میں, عجب لکھنے کی کوشش میں, عجب کچھ یاد آتا ہے. عجب سا بھول جاتی ہوں, عجب سا بھول جاتی ہوں. عجب خاموش سی آہیں, عجب خاموش سی آہیں, عجب دم توڑ جاتی ہیں. عجب بوجھل سے قدموں سے, عجب سی لوٹ جاتی ہیں. عجب مسکان ہونٹوں کی, عجب مسکان ہونٹوں کی, عجب قصہ سناتی ہیں. عجب سی رات اور وحشت, عجب سی رات اور وحشت, عجب سپنے دکھاتی ہیں.
अजब सी सुबह की रौनक, अजब सी सुबह की रौनक, अजब सा मुस्कुराती है, अजब उलझन में उलझी हूँ, अजब उलझन में उलझी हूँ, नहीं मालूम सोचों का, नहीं मालूम सोचों का, थमेगा सिलसिला कब तक, समझ आता नहीं मुझको, समझ आता नहीं मुझको कि आखिर माजरा क्या है, कि आखिर माजरा क्या है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने अपने जहन की सारी उलझने जो हैं वो इसमें बयान करने की कोशिश की है। नज्म का आहंग तो आपको आता है, नज्म में आपकी आहंग है, अभी ज़बान और बयान की कुछ और बारीकियां हैं, वक्त के साथ सीख लेंगी कि अजब लिखने की कोशिश में, मैं कहूँगी ये कि अजब नामा है, अजब लिखने की कोशिश में अजब नामा लिखा तुमने। वाह, खुशनुमा, आप कोशिश कीजिए जरूर। सबसे बड़ी बात है कि आपकी शायरी जो है मुस्तार नहीं है, जो आपने महसूस किया उसको बेकमोकास बयान करने की कोशिश की, शायरी का एक बहुत बड़ा वस्फ है। अब मैं गजल हमें सुनाइए अपनी प्लीज। खुशनुमा फातिमा जी सुनाती हूँ। दरअसल मेरी तबीयत भी नासाज है, टाइफाइड हुआ है मुझे, बस मैं फिर भी हाजिर हूँ। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनाइए, हो जाओ, सुनाइए। शाबाश। मतलब अर्ज करती हूँ। हवा ऐसी लगी कुछ इस दफा उनको जमाने की, हवा ऐसी लगी कुछ इस दफा उनको जमाने की, गई बेकार ही जद्दोजहद उनको मनाने की, गई बेकार ही जद्दोजहद उनको मनाने की, हवा ऐसी लगी कुछ इस दफा उनको जमाने की। दूसरा शेर करती हूँ। जुदाई जब मुकद्दर थी तो फिर दिल तोड़ कर जाते, जुदाई जब मुकद्दर थी तो फिर दिल तोड़ कर जाते, जरूरत क्या थी फिर तुमको किसी अदना बहाने की, जरूरत क्या थी तुमको किसी अदना बहाने की। फिर आगे अर्ज करती हूँ कि जब से रख दिया मैंने दिया फिर बाम से बाहर, कि जब से रख दिया मैंने दिया फिर बाम से बाहर, हवाएं साजिशें दिन रात करती हैं बुझाने की, हवाएं साजिशें दिन रात करती हैं बुझाने की, करती हैं बुझाने की। शुक्रिया। ये मैं ही जानती हूँ शिद्दते गम की तपिश क्या है, ये मैं ही जानती हूँ शिद्दते गम की तपिश क्या है, मगर हिम्मत नहीं, सॉरी एक लाइन मिस हो गई, मगर हिम्मत नहीं अब बज़्म रौनक कुछ सुनाने की, मगर हिम्मत नहीं अब बज़्म रौनक कुछ सुनाने की, कुछ सुनाने की। वाह वाह वाह, क्या आगे पढ़ती हूँ। मैं अक्सर हार जाती हूँ बिखर कर जब संभलती हूँ, मैं अक्सर हार जाती हूँ बिखर कर जब संभलती हूँ, मैं अक्सर हार जाती हूँ बिखर कर जब संभलती हूँ, नजर आते हैं अपने ही कोशिश में गिराने की, नजर आते हैं अपने ही कोशिश में गिराने की, कोशिश में गिराने की। आखिरी शेर है इसका। मोहब्बत छोड़िए साहब नहीं शिकवा कोई इससे, मोहब्बत छोड़िए साहब नहीं शिकवा कोई इससे, खुली आंखों से देखी है हकीकत इस जमाने की, खुली आंखों से देखी है हकीकत इस जमाने की। बहुत शुक्रिया, बहुत सही, वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तभी अपने नजर आते हैं कोशिश में गिराने की,
ये शेर फिर से पढ़िए। बहुत अच्छा। अब सही किया आपने, अब सही कर दिया आपने। हाँ बस ये दोबारा से पढ़िए खुशनुमा। हाँ बेटा, ऐसे ऐसे जी हमारी एक अक्सर हार बेतकल्लुफ महफिल है जाती ये। जी जी बिल्कुल। मैं अक्सर हार जाती हूँ बिखर कर जब संभलती हूँ। मैं अक्सर हार जाती हूँ बिखर कर जब संभलती हूँ। नजर आते हैं अपने ही कोशिश में गिराने की। सभी नजर अपने आते हैं नजर अपने आते ही हैं कोशिश में गिराने की। चलिए कोई नजर बहुत आते नजर हैं आते हैं आगे अपने बात। ही, कोशिश नजर में आते हैं गिराने अपने ही सभी उसको गिराने। हाँ इसी तरह आप कह लीजिए बहर में आना चाहिए। हाँ बहन मैंने जी, ठीक है बेटा, सब बहुत अच्छी शायद कोशिश, मौजूद है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छी कोशिश बहुत माशाल्लाह, बहुत 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 आपकी तबीयत भी खराब थी, आपने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत बहुत। बहुत शुक्रिया। बहुत दुआ। अब मैं बड़ी मखमसे में हूँ। शुक्रिया। अच्छा मैं खुद ही क्यों ना सुना दूं? नहीं नहीं या- नहीं नहीं अजरापा, आप मुझे बुलाइए ना। मैं अब मैं आती हूँ। जरूर जरूर था। हमारी सबिहा सुंबुल से भी एक जमाने का ताल्लुक है। इतनी छोटी सी हुआ करती थी जब से मैं इनको जानती हूँ, प्यारी सी बच्ची थी और अभी प्यारी सी हैं। इन्होंने अपनी नात गोई में अपनी शायरी से एक बहुत कम उम्री से पहचान बनाई है अदब में, और अलीगढ़ इनकी पहचान है और इस पर ये नाज भी करती हैं। और अब तो खैर इंटरनेट का जमाना है, लेकिन ये जब छोटी सी थी तब से ये पढ़ रही हैं और इनकी 2 किताबें आ चुकी हैं। मैंने इनका लिखा था कहीं नाम, एक तो है हर किरण, इनका शेरी मजमुआ, और दूसरा है अभी एक असल में ऑनलाइन वेबिनार चल रहा है, राह निजात। जाहिर है राह निजात नाम से बहुत वाज़ेह है कि ये इनकी नातों का मजमुआ है। 2 किताबों की मुसन्निफा हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करती हूँ कि अपने कलाम से हमें महसूस फरमाएं। बहुत शुक्रिया अजरापा। और अलीगढ़ की, इनके साथ जरूर अलीगढ़, मतलब ना भी कहो तो सब लोग पहचान जाते हैं, अच्छा सबिहा सुंबुल अलीगढ़ वाली, राइट? अरे अजरापा देखा, एक खवातीन का मशायरा हो रहा है, सब सामईन को बता दूं, ये सिर्फ खवातीन जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से, जिन्होंने वहां पढ़ा है, उन पर ये मुश्तमिल मशायरा है। तो ये है सबिहा सुंबुल साहिबा। जी अजरापा मैं सबसे पहले, क्योंकि ये आज की महफिल जो है वो मैं कहने वाली थी जरूर, मुझे मालूम था तुम करोगी। क्या नज्म? इरशाद। जी मैं एक पहले ना तहत में नज्म, क्योंकि आज मुशायरा ही मतलब सर सैयद अहमद खां को खराज अकीदत एक तरह से पेश करना है, तो इसलिए मैं पहले नज्म पेश करके फिर गजल के अशार कुछ पेश कर दूंगी। तो ये समाअत करें कि खाक के जर्रे थे हमको माहे ताबा कर दिया। क्या बात है, वाह वाह वाह। जर्रे थे हमको माहे ताबा कर दिया, सर उठाकर फख्र से जीने का सामा कर दिया। भाई क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। इल्म से हर जहन को तूने दरख्शां कर दिया, इल्म से हर जहन को तूने दरख्शां कर दिया, तूने मिल्लत की हर एक मंजिल को आसान कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत मोहसिने मिल्लत तेरे ख्वाबों की अजमत को सलाम, इस दयारे इल्म की अक़दारो अजमत को सलाम, और तेरे गुलशन की को खजाओं से बचाना है हमें। ये दूसरा बंद, तेरे गुलशन को खजाओं से बचाना है हमें, इल्म और फन की राह को दिलकश बनाना है हमें, बिल्कुल तेरी दानिशगाह का हर दर सजाना है हमें, दुश्मनों की कज निगाही से बचाना है हमें, रहबरे मिल्लत तुझे और तेरी अजमत को सलाम, तेरे हामी हालियो शिबलियो हसरत को सलाम। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बात कि हम जहाँ होंगे वहां तेरे तराने गाएंगे, सारी यादें हम जहाँ होंगे वहां तेरे तराने गाएंगे, और सारी यादें इस चमन की साथ हम ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वहदते मिल्लत का पैगाम आया बन जाएंगे, और
کیا پلیز آف کر دیجیے. اچھا وحدت ملت کا پیغام آیا بن جائیں گے, سارے عالم پر تیرے ذرے چمک پھیلائیں گے, اور خواب زرعی تو نے دیکھے تھے جو ملت کے لیے, تیری اس اعلی خیالی جاہو حشمت کو سلام. واہ واہ. اور آخری بند ہے کہ تیرے میخانے سے سیکھے ہم نے آداب جنوں, تو نے جو راہیں دکھائیں ان میں پایا ہے سکون. کیا بات ہے, واہ واہ. ملک سے, ملت سے, مذہب سے محبت ہے ہمیں, اپنے پرچم کو کبھی ہونے نہ دیں گے سرنگوں. واہ. خوب ہے سایہ فگن تیری عنایت کو سلام, تیری الفت, تیری عظمت, تیری حشمت کو سلام. کیا بات ہے, واہ واہ. اور اضرافہ بالکل وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں ایک بالکل الگ سی میں نے ردیف استعمال کری, میں نے سوچا آج میں آپ کے سامنے یہ غزل پیش کروں. تو اب ایک جگہ سے تو سند مل گئی ہے, آپ سے بھی مل جائے گی تو اچھا لگے. جی جی ارشاد ارشاد. جی جی سماعت کریں. چوٹیں ہوں اگر دل پر احساس رفو کرنا, واہ واہ, احساس رفو کرنا, واہ. چوٹیں ہوں اگر دل پر احساس رفو کرنا, آنکھوں کے اجالوں کے الماس رفو کرنا, آنکھوں کے اجالوں کے الماس رفو کرنا. اور یہ شعر, الفاظ کے نیشتر سے چھلنی ہو اگر سینہ, الفاظ کے نیشتر سے چھلنی ہو اگر سینہ, گفتار کے رنگوں سے ترتاس رفو کرنا. پھر سے پڑھیے مقرر ارشاد. الفاظ کے نیشتر سے چھلنی ہو اگر سینہ, گفتار کے رنگوں سے قرطاس رفو کرنا. اور یہ شعر, رستہ نہ کھلے تم پر منزل نہ ملے کوئی, رستہ نہ کھلے تم پر منزل نہ ملے کوئی, امید کا پھر اپنی آواز رفو کرنا. کیا بات ہے, بہت خوب. امید کا پھر اپنی آواز رفو کرنا. اور یہ شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر, جب موت کا کھٹکا ہو اور جسم بھی ہو بھاری, جب موت کا کھٹکا ہو اور جسم بھی ہو بھاری, تو یاد الہی سے انفاس رفو کرنا. کیا بات, کیا بات. تو یاد الہی سے انفاس رفو کرنا. اور یہ شعر, دریائے محبت میں غوطہ جو لگانا ہو,
दरियाए मोहब्बत में होता जो लगाना हो, फिर वक्त की गर्दिश का मिक़यास रफू करना, फिर वक्त की गर्दिश का मिक़यास रफू करना। जिस राख में चिंगारी मौजूद नहीं होती, जिस राख में चिंगारी मौजूद नहीं होती, उस राख के जर्रों का इतिहास रफू करना, उस राख के जर्रों का इतिहास रफू करना। और ये शेर, हालात की गर्दिश से तुम पर से जो उठ जाए, हालात की गर्दिश से तुम पर से जो उठ जाए, टूटा हुआ लोगों पर विश्वास रफू करना। क्या बात है, विश्वास हुआ लोगों पर, बहुत शुक्रिया, विश्वास रफू करना। और ये शेर भी समाप्त कर लें कि सहरा के सफर में हो कुछ अज़्म के धागे भी, सहरा के सफर में हूँ कुछ अज़्म के धागे भी, जोश से बुझ जाए वो प्यास रफू करना, जोश से बुझ जाए वो प्यास रफू करना। और ये शेर भी, जब गर्दिशे दौरां से कुछ फासले बढ़ जाए, जब गर्दिशे दौरां से कुछ फासले बढ़ जाए, रिश्तों में मोहब्बत की एक आस रफू करना, रिश्तों में मोहब्बत की एक आस रफू करना। और सारे मक्ता में पेश कर रही हूँ शेर, रिश्तों गर जख्म कोई हंस दे, घबराना नहीं लोगों, गर जख्म कोई हंस दे, घबराना नहीं लोगों, बस दिल की फसीलों को बिंदास रफू करना। बम्बैया, बस दिल की फसीलों को बिंदास रफू करना। अब ज़हमतें तमाम में मक्ते का शेर पढ़ती हूँ, समाप्त करें। जी मक्ता पेश करती हूँ। बस उम्मीद की किरणों से रोशन है जहां सारा, उम्मीद की किरणों से रोशन है जहां सारा, हरगिज न कभी सुम्बुल तुम यास रफू करना, हरगिज न कभी सुम्बुल तुम यास रफू करना,
चोटें हो अगर दिल पर एहसास रफू करना, बहुत खूब, बहुत खूब। आँखों के उजालों के वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। मास रफू करना। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान शुक्रिया, अल्लाह। बहुत क्या शुक्रिया। कहने क्या, वाह वाह वाह। बहुत भाई सुम्बुल, वाह। जी। ऐसी गजल कहने की बड़ी हिम्मत चाहिए, हाँ, बड़ी हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। उस्ताद तुमने रफा तो नहीं हो। रफू करने की जैसे हिंदी में कहते हैं ना, परिभाषा ही बदल दी। और शुरू में तो कुछ ऐसे काफिये थे कि डिक्शनरी में ढूंढने पड़ेंगे वो वर्ड, वो अल्फाज, और बाद में इतिहास और फिर बिंदास का तो कमाल ही है। बहुत हिम्मत चाहिए जी कहने के बहुत लिए। शुक्रिया, बाद बहुत में शुक्रिया। बात करेंगे, बहुत बहुत बाद में बात मेहनत किए। करेंगे इसके ऊपर। खैर, जी जी मजा आया सुन के तुम्हारी नजर। ये हमारी महफिल है। बहुत देखिए, मैं बहुत सारे अशआर भी पढ़ सकती हूँ यहाँ इधर के, लेकिन ये जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि ये 4-5 लोगों की महफिल है और सुनने वाले भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बाज़ौक़ हैं, तो जिस तरीके से ये बेतकल्लुफी से चल रही है, उम्मीद है कि आप लोग इस तरह इसको पसंद कर रहे होंगे। जी जी। तो यहाँ पर मैं सुम्बुल, अगर मुझे मौका मिला तो मैं एक दफा तुम्हें फिर जहमत दूंगी, बल्कि तुम्हें हुक्म अच्छा दूंगी कि एक और गजल जी, सुनाना, अरे लेकिन नहीं अभी हम बिल्कुल, पहले मैं देखते कहने हैं। वाली थी कि आप तो हुक्म दे सकती। हाँ, जी मैं तो हुक्म दूंगी जी, तुम्हें। अगर अच्छा, और अगर अजरा भाई एक बात और मैं अर्ज कर दूं, तकी आबदी साहब ने ये गजल सुनी, मैंने तरन्नुम से नहीं सुनाई थी आज आपका, क्योंकि तरन्नुम का था ना, तो मैंने सोचा लाओ यही फिट कर दूं। नहीं तरन्नुम बहुत से तो, अच्छा, बहुत तरन्नुम तो खैर तुम्हारा है ही बहुत बहुत अच्छा, अच्छा लेकिन तरन्नुम। वो बहुत बहुत अच्छा है। उन्होंने बड़ी, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी सनद है। उन्होंने कहा कि अरे इस पर तो जरूर बात होगी, या आप क्या क्या तो आप लेके आई हैं इसमें विश्वास, और बड़ी उनको हिम्मत इतना का काम पसंद है, आया, बहुत बहुत पसंद आया। हाँ, जुर्रत चाहिए। अच्छा, अब मुझे याद आ रहा है, मैंने कहा था कि अलीगढ़ का जो ताल्लुक है हमारे अदब, मतलब एक अलीगढ़ की अदबी खिदमात और वहाँ के अदबी लोगों पर तो कितनी किताबें लिखी गई हैं, क्या क्या नहीं है, मगर ज्यादातर लोग जो हैं वो आके मजाज पे अटक जाते हैं। बहुत हुआ तो बहुत उसमें हमारे शहरयार साहब का जिक्र आता है, क्योंकि उनके गाने फिल्मों में गाने आ गए हैं, लेकिन और भी बहुत लोग हैं। आजकल मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी खलीलुर रहमान आज़मी साहब एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है उर्दू शायरी का, उर्दू तनकीद का। उनकी बेटी, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग जो उर्दू के पुराने शायर थे, उनके बच्चों को उर्दू नहीं आती है। बिल्कुल तो जब बिल्कुल। मैं हुमा खलील को देखती हूँ, उसने बड़ी अंग्रेजी में उसने किताब अलीगढ़ और अलीगढ़ शायर की है, इतनी खूबसूरत किताब है। उसमें अलीगढ़ से मुताल्लिक शायरी भी है, चीजें बिल्कुल भी हैं और बिल्कुल। तारीख भी है। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी होती है कि यंग जनरेशन जो है, नए लोग हैं, वो भी अलीगढ़ की रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। अलीगढ़ की दो शायरात जिनका अदब में बहुत तस्करा होता है, बल्कि इतना तस्करा नहीं होता जितना होना चाहिए, वो हैं जैदी सिस्टर्स, साजिदा जैदी और जाहिदा बिल्कुल जैदी, जो बिल्कुल नक्काद भी थी, शायरा भी थी और नॉवेल निगार भी थी, और बहुत उन्होंने ड्रामा। इतनी किताबें लिखी हैं, और मुतरज्जिम थी। जाहिदा जैदी ने तो बहुत उनके रशन ड्रामों के तर्जुमे किए थे। तो ये खवातीन, उनका जब भी अदब में कहीं नाम आता है, हिंदो पाक की खवातीन शायरात, तो इन दो नामों के बगैर वो अधूरी बिल्कुल रहती है। बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल हाली के खानवादे से थी, हाली की परनवासियां थी, और इस उर्दू उनको विरसे में मिली थी, लेकिन क्योंकि ये अंग्रेजी से भी वाकिफ थी, अंग्रेजी अदब से भी वाकिफ थी, तो इन्होंने उर्दू शायरी को और वुसअत दी, तनकीद को वुसअत दी। इन दोनों को याद करना बहुत जरूरी है। अब मैं आती हूँ अगली शायरा की तरफ, जो मैं खुद अपने कुछ कलाम पेश करना चाहती हूँ। लेकिन मैं नईमा आपा, आप नईमा अजरा है। आपा के मुताल्लिक कुछ कहिए। हाँ, आप ज्यादा अच्छा कहेंगी अजरा आपा के लिए, उनको बुलाइए आप। जी जी अभी बिल्कुल। नहीं अजरा, मैं चलिए, एक बात शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया। अजरा, मैं पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि अभी आपने जिक्र किया कि अलीगढ़ में जूनियर और सीनियर का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो आप मुझसे 1 साल सीनियर हैं, इसलिए आप पहले मुझे दावत सुखन दीजिए, मैं आपकी बात पढ़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वाकया है। पहले मैं आपसे पहले पढ़ूंगी। वैसे भी शायरी में मैं आपसे जूनियर हूँ,
अच्छा चलो, लेकिन मुझे तुम्हारा तारुफ कराने दो, हाँ, क्योंकि वो देखिए भाई ये मेरी दोस्त है, इसमें बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं है। मैं इनको उर्दू की बोलती किताब कहती हूँ। हाँ उर्दू बेशक में एमए और पीएचडी बेशक तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन ये माशाल्लाह इतनी काबिल हैं, इनकी तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 16 किताबें शाया हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा काम जो इनका है ये शायद, अच्छा अभी इनकी एक शायरी छुपी हुई थी इनकी, कभी कभी मुझे सुना दिया करती थी, लेकिन अब ये इनकी एक किताब आई है, दिल ने कहा, कुछ दिल ने अरे कहा, वाह, कितना खूबसूरत हाँ, नाम है। तो मैंने बहुत कहा ये अच्छा। कभी नहीं सुनाती थी मशायरों में। तो जो मैं कह रही थी कि जो सबसे इनका अहम काम है, इनकी पीएचडी बहुत लोग करते हैं आजकल, भोग भाव डॉक्टर फलानी है, लेकिन इन्होंने नजीर अकबर आबादी की शायरी की फरहंग, मैं सही कह रही हूँ ना नईमा? हाँ बिल्कुल फरहंग ही ना? हाँ, फरहंग मैं कहती थी, इन्होंने मुझे तस्दीक की, फरहंग पर काम किया है, जो कि बहुत अहम काम है। और बहुत सारे प्रोग्रामों में ये बुलाई जाती हैं, बहुत खूबसूरत कहानियां लिखती हैं, और बच्चों के लिए भी इतनी अच्छी कहानियां लिखी हैं इन्होंने। फारसी भी जानती हैं, और फारसी से भी एक किताब अभी इन्होंने तर्जुमा की है। तो नईमा जो है इतनी दीदारेजी से काम करती हैं, और आप किसी बात को इनसे पूछ लीजिए, फौरन आपको ये जवाब दे देंगे। तो बहरहाल आज हमारी शायरी की महफिल है, हम इनसे इनके शेर सुनेंगे, नज़में सुनेंगे, गजल। एक नज़म सुनाइए और गजल जरूर। नईमा जाफरी पाशा, आपने कुछ जयपुर से इतना ताल्लुक ज्यादा है, अलीगढ़ में पढ़ी है और अब दिल्ली में रहती है। आपने हाँ नईमा, तारुफ कुछ इतना ज्यादा करवा दिया कि मैं पहले ही शर्मिंदा हो गई। नहीं कोई शर्मिंदा नहीं। चलो तो अपनी नज़म सुनाओ। पहले कुछ अशार सर सैयद की नजर हैं, और वो इत्तेफाकन बस 2-3 दिन, ये 17 तारीख को ही कुछ जबान पे आ गए, तो मैं पेश करना चाहती हूँ सर सैयद की खिदमत में। अर्ज करती हूँ, रोशनी ऐसी दी है सैयद ने, रोशनी ऐसी दी है सैयद ने, जिसने ख्वाबों के रुख ही मोड़ दिए, जिसने ख्वाबों के रुख ही मोड़ दिए। जिंदगी सुस्त रो अंधेरी थी, जिंदगी सुस्त रो अंधेरी थी, माहो अंजुम उसी ने जोड़ दिए। अरे वाह वाह क्या कहना, माहो अंजुम उसी ने जोड़ दिए। जिसने दी हमको इल्म की शमा, जिसने दी हमको इल्म की शमा, रिश्ते अक्लो खिरत से जोड़ दिए, रिश्ते अक्लो खिरत से जोड़ दिए। जिसने नस्लों की आबियारी की, जिसने नस्लों की आबियारी की, और हवाओं के रुख भी मोड़ दिए, क्या बात है, और हवाओं के रुख भी मोड़ दिए। हमको हमसे मिला दिया जिसने, हमको हमसे मिला दिया जिसने, हमको हमसे मिला दिया जिसने, राब्ते ज़हन दिल के जोड़ दिए, राब्ते ज़हन दिल के जोड़ दिए। उसकी तुर्बत पे रहमतों का नुज़ूल, उसकी तुर्बत पे रहमतों का नुज़ूल, बुत जहालत की जिसने तोड़ दी। क्या अच्छा है। अब एक गजल सुनाऊं या एक नज़्म सुनाऊं? नज़्म सुनाओ, गजल भी सुनाओ। पहले नज़्म पेश करती हूँ, क्योंकि वो ताल्लुक अलीगढ़ से है जी, और अलीगढ़ का नाम आते ही हमें अपना दौराने तालिब इल्मी याद आता है। जाहिर तो है। इस हवाले से कहना चाहिए कि अपनी जवानी याद आती है। इरशाद इरशाद। तो एक नज़्म पेश करती हूँ जिसका उन्वान है मेरा आईना। मेरा आईना, क्या बात है, वाह। नहीं ये मैं नहीं हूँ, मेरा अक्स भी नहीं है। वाह नहीं वाह, नहीं ये मैं नहीं हूँ, मेरा अक्स भी नहीं है। मुझे है तलाश उसकी जो थी शोख व शंग लड़की, मुझे है तलाश उसकी जो थी शोख व शंग लड़की, और जहाँ की बंदिशों से थी बड़ी वो तंग लड़की, और जहाँ की बंदिशों से थी बड़ी वो तंग लड़की।
उसे किस जगह में ढूंढूं जो थी मेरे संग लड़की। क्या प्यारी बात। मेरे संग उसे किस जगह में ढूंढूं वाह वाह जो थी मेरे संग लड़की। नहीं ये मैं नहीं हूँ, मेरा अक्स भी नहीं है। क्या था क्या था चांद उसकी मंजिल और कदम थे क्या कशां पर। वाह क्या था चांद उसकी मंजिल और कदम थे क्या कशां पर। था वजूद उसका खाकी कि नजर थी आसमां पर। क्या खूबसूरत नज़्म है। वाह वाह। वजूद उसका खाकी पे नजर थी आसमां पर। हंसी मौसमों के नगमे हम वक्त थे जुबां पर। क्या बात है। हंसी मौसमों के नगमे हम वक्त थे जुबां पर। नहीं ये मैं नहीं हूँ, मेरा अक्स भी नहीं है। नहीं है। बहुत अच्छा। वाह वाह बहुत वाह वाह। कि वो फरेब से गुरेजा, हम्म ये फरेब है सरासर। अरे वाह। वो फरेब से गुरेजा, ये फरेब फरेब है सरासर। वहाँ हर कदम संभलना, यहाँ हर कदम पे ठोकर। वाह वहाँ ख्वाबों का चमन था, यहाँ हकीकतों के पत्थर। वहाँ ख्वाबों का चमन था, यहाँ हकीकतों के पत्थर। नहीं ये मैं नहीं हूँ, मेरा अक्स भी नहीं है। ये जो मेरे सामने है बड़ी अजनबी लगे है। ये जो मेरे सामने है बड़ी अजनबी लगे है। इसे था तो मैंने देखा, ये कभी कभी लगे है। हाँ ये मेरे ही तो अंदर, हाँ ये मेरे ही तो अंदर थी कहीं छुपी लगे है। हाँ ये मेरे ही तो अंदर थी कहीं छुपी लगे है। नहीं ये मैं नहीं हूँ, मेरा अक्स भी। वाह 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 वाह। बहुत बड़ी बड़ी पुरशिकन जबी है, बड़ी बेसुरूर आंखें। बड़ी पुरशिकन जबी है, बड़ी बेसुरूर आंखें। अब कहाँ गई कि जो थी वो नशे में चूर आंखें। अरे वाह 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 वाह। अब कहाँ गई कि जो थी वो नशे में चूर आंखें। वो हसीन ख्वाब बुनती बड़ी बेकसूर आंखें। अरे वो हसीन ख्वाब बुनती बड़ी बेकसूर आंखें। नहीं ये मैं नहीं हूँ, मेरा अक्स भी वाह नहीं। वाह वाह। बहुत खूब। अब ये हाल है, अब ये हाल है कि मेरे आईने ने मुझको कई बार बढ़ के टोका। मेरे आईने ने मुझको कई बार बढ़ के टोका है। ये कैसी खुद फरेबी, मुझे कह के उसने रोका। अरे वाह कैसे खुद फरेबी, पूरी कहानी है, पूरी कहानी। बहुत अच्छा है। ये कैसी खुद फरेबी, मुझे कह के उसने रोका। तुम्हें है तलाश जिसकी, वो थी एक हवा का झोंका। वाह वाह। तुम्हें है तलाश जिसकी, वो थी एक हवा का झोंका। मेरी जान ये तुम ही हो, यही अक्स है तुम्हारा। मेरी जान ये तुम ही हो, यही अक्स है तुम्हारा। वो तुम कौन से जहां में जो गुजर गया वो कल था। अरे वाह। वो तुम कौन से जहां में जो गुजर गया वो कल था। कभी लौट कर न आए वो बड़ा सुहाना पल था। वाह वाह। कभी लौट कर न आए वो बड़ा सुहाना पल था। जिसे ढा दिया लहर ने, ये वो रेत का महल था। वाह वाह। जिसे ढा दिया लहर ने, ये वो रेत का महल था। मेरी जान ये तुम ही हो, यही अक्स है तुम्हारा। मेरी जान ये तुम ही हो, यही अक्स है तुम्हारा। अरे वाह वाह वाह। नहीं मापा क्या कहने। वाह वाह वाह। मैं तुमसे गजल सुनेंगे, लेकिन मुझे एक शेर पढ़ने दीजिए, एकदम याद आ गया। अभी जाहिदा जैदी का जिक्र आया था, तो वैसे वो बहुत कम गजलें कहती थी, नज्मों की शायरा थी। कि सुना रही हैं वफा, कि उन्होंने टूटे ख्वाबों का जिक्र था ना, तो सुना रही हैं वफा की राहें, शिकस्त परवास का फसाना। सुना रही हैं वफा की राहें, शिकस्त परवास का फसाना। कि दूर तक वादिये तलब में पड़े हैं हर सिमत ख्वाब टूटे। नहीं मैं बहुत खूबसूरत नज्म की पूरी कहानी थी, हर दिल की आवाज थी। हर औरत कहीं ना कहीं ऐसा महसूस जरूर करती है। कुछ गजल के अशार हमें अता करो, कीजिए। कुछ करती हूँ, शायद खातरे इरशाद। ये असरे हाजिर के सियासी, समाजी और वबाई हालात के तनाजुर में एक ताजा गजल है पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। वाह।
بیاض زیست کے جو باب تھے وہ بدلے گئے، بیاض زیست کے جو باب تھے وہ بدلے گئے، گناہ ثواب کے اسباب تھے وہ بدلے گئے۔ وہ بدلے گئے، کیا بات، بھرپور مانیت، واہ واہ واہ، گناہ ثواب کے اسباب تھے وہ بدلے گئے، وہی ہے میں، وہی شیشہ، وہی ہے پیمانہ، کیا بات ہے، وہی ہے میں، وہی ہے میں، وہی شیشہ، وہی ہے پیمانہ، پھر میں کشی کے جو آداب تھے وہ بدلے گئے، وہ بدلے گئے۔ بہت اچھا ہے نعیمہ آپا، کیا کہنے، میں کشی کے جو آداب تھے وہ بدلے گئے، وہی ہے نیند، وہی رات کی گرانی ہے، ارے وہی ہے نیند، وہی رات کی گرانی ہے، ہماری آنکھوں میں جو خواب تھے وہ بدلے گئے، وہ بدلے گئے۔ بہت اچھا، بدلے گئے، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت غزل ہے، واہ واہ، کیا بات ہے، ہماری آنکھوں میں جو خواب تھے وہ بدلے گئے، بدلے گئے، بہت اچھا ہے۔ سوالوں اور جوابوں کا سلسلہ ہے وہی، سوالوں اور جوابوں کا سلسلہ ہے وہی، جو حق دلاتے وہ سارے جواب بدلے گئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جواب بدلے گئے، واہ واہ واہ، بہت جو اچھا، حق دلاتے وہ سارے جواب بدلے گئے، بہت اچھا۔ اور یہ شعر اس تناظر میں پیش ہے کہ آج کل فیس بک فرینڈ بات ہونے لگے ہیں، اسی حوالے سے یہ ایک شعر ہے، رفاقتیں تو بہت عام ہو گئی ہیں اے دوست، رفاقتیں تو بہت عام ہو گئی ہیں اے دوست، دکھوں میں ساتھ جو احباب تھے وہ بدلے گئے، قدرے بدل گئی واقعی، دکھوں میں ساتھ جو احباب تھے جو بدلے گئے، کیا بات ہے، وہ بدلے گئے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا عصری آ گئی ہے، وہی ہے باغ، وہی ہے باغ، وہی گل، وہی ہے باغ، وہی گل، وہی نغمہ ہے، وہی ہے باغ، وہی گل، اور وہ یہ نغمہ ہے، سکون دل کے جو اسباب تھے وہ اسباب تھے جو بدلے گئے، کتنا اچھا ہے، واہ واہ، سکون دل کے جو اسباب تھے وہ بدلے گئے۔ اور یہ آخری شعر جو ہے وہ خاص طور پہ کووڈ کے تناظر میں ہے، عبادتیں ہیں وہی اور وہی دعائیں ہیں، عبادتیں ہیں وہی اور وہی دعائیں ہیں، مگر دعاؤں میں القاب تھے وہ بدلے گئے۔ ارے واہ واہ کیا واہ واہ، نعیمہ پر کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، القاب تھے جو بدلے گئے، وہی اور وہی دعائیں ہیں، مگر دعاؤں میں القاب تھے وہ بدلے گئے، بدلے گئے، کیا بات ہے، بہت اچھا نعیمہ پر، بہت اچھا، آپ ہی کا حصہ ہے نعیمہ پر، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، سلام جی۔ اور حضرت آپا تو آج ترنم سے بھی سنانا ہے، حضرت آپا میں سنا دوں گی، پکی بات ہے۔ اب میں دعوت سخن دیتی ہوں اپنی بہت اچھی دوست اور اس سے کہیں زیادہ بڑی معروف شاعرہ حضرت نقوی، جو آپ اس وقت آپ کی ناظمہ بھی ہیں محترمہ، ان کے بارے میں یہ بتاؤں کہ انہوں نے بہت کم عمری سے شاعری شروع کر دی، یہ شاید ہائی اسکول میں تھی، اس وقت سے ان کی نظمیں جو ہیں وہ یہ محفلوں میں پڑھتی تھیں اور بہت پسند کی جاتی تھیں، اور اس وقت کی جو بڑی معروف شاعرائیں تھیں وہ ان کو ہمت افزائی بھی کرتی تھی اور ان کی پسند کرتی تھی، تو میں اس زمانے سے ان کی شاعری کی فین ہوں، اور اب تو ماشاءاللہ انہوں نے شاعری میں جھنڈے گاڑ رکھے ہیں، اور اس سے زیادہ تعارف میں ان کو کیا کرواؤں کہ یہ بین الاقوامی سطح کی شاعرہ ہیں، اور میں اب ان کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ اپنا نظم، غزل اور ترنم سے اور تحت سے جس طرح میں سناتی ہوں، دیکھیے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ میں ظاہر ہے کہ سر سید دیکھتے کے حوالے سے مشاعرہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی گڑھ کے حوالے سے کچھ نہ سنایا جائے، اپنی مادر درسگاہ کے لیے کچھ نہ سنایا جائے۔ پچھلے سال جب ایک صدی مکمل ہوئی تھی علی گڑھ کی، تو میں نے ایک نظم کہی تھی، وہ پیش کرتی ہوں، وہ میرے سامنے کمپیوٹر پہ، کاش میں آپ کو دکھا سکتی کہ اس میں علی گڑھ بھی دکھ رہا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نظر آ گیا، جی یہ میرے فیس بک پہ ڈالی تھی، تو یہ سناتی ہوں آپ کو۔ میں نے کوشش کی کہ بیک گراؤنڈ میں آ جائے، پر میں اتنی
टेक्निकल नहीं हूँ, खैर बहरहाल। ए अलीगढ़ की जमीन, नज़्म पेश कर रही हूँ। ए अलीगढ़ की जमीन, तुझको क्यों नाज न हो किस्मत पर, तुझ पे आबाद है ख्वाबों का नगर। इल्म दानिश का जो गहवारा है, इल्म दानिश का जो गहवारा है, जिसने एक अहद की तारीख लिखी। ए मेरी मादर इल्मी, ए मेरी मादर इल्मी, मेरा रिश्ता है पुराना तुझसे। ये फकत चंद बरस की ही रफाकत तो नहीं, तेरे दामन में गुजारे हुए कुछ माहो साल, कुछ लड़कपन के हंसी ख्वाब, गुज़िश्ता अहबाब, ये तो सब याद की पुरवाई है, आती है चली जाती है। ए अलीगढ़, ए अलीगढ़, मेरा रिश्ता है पुराना तुझसे, नस्ल दर नस्ल से पाई हुई मीरास है तू। एक दीवाने ने रखा था जो आंधी में चिराग, जिसकी जौ से कई नस्लों के मुकद्दर चमके। वाह वाह बेशक, वाह वाह। आरात में जो जिंदा है वो सभी ख्वाब जो देखे थे गए वक्तों ने, ख्वाब थे कौम की बेदारी के, एक नए दौर की तैयारी के। एक सदी बीत गई, एक सदी बीत गई, ख्वाब सैयद की ये ताबीर सलामत बाशद, ख्वाब सैयद की ये ताबीर सलामत बाशद। अब नए दौर के कुछ और तकाजे होंगे और मसाइल भी नए। रहे मजमूम इरादों की लपक से महफूज, ऐ मेरी मादर इल्मी, ये दुआ है। एक दुआ के साथ बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। अपनी एक नज्म सुनाना चाहती हूँ, फिर मैं तरन्नुम से भी कुछ अर्ज करूंगी। मुझे याद है वैसे ये, लेकिन मैं फिर भी खोल लेती हूँ इसको। इसका उन्वान है, उन्हें मुझसे शिकायत है। याद होगी, उन्हें मुझसे शिकायत है कि मैं माजी में जीती हूँ। उन्हें मुझसे शिकायत है कि मैं माजी में जीती हूँ, मेरे अशार में आसेब हैं गुजरे जमानों के। वो कहते हैं कि यादें साए की मानिंद मेरे साथ रहती। ये सच है, ये सच है, इससे कब इनकार है मुझको। मैं अक्सर जागते दिन में भी आंखें मूंद लेती हूँ। कोई आवाज, कोई सूरत, कोई आवाज, कोई जायका या लम्स जब जादू जगाता है तो गर्दिकी, इसमें मैंने एक लफ्ज लिया है मनियातूर। मनियातूर कहते हैं मिनिएचर को, मिनिएचर पेंटिंग मनियातूर फारसी में भी कहा जाता है और इटालियन में मनियातूर कहते हैं उसको। कोई सूरत, कोई आवाज, कोई जायका या लम्स जब जादू जगाता है तो गर्दालूद मनियातूर तस्वीरें अचानक बोलने लगती है, नाटक मंच बजता है। किसी टूटे हुए संदूक में रखे हुए बोसीदा मखतूते से कोई दास्तां तमसील बन जाती है। जी उठते हैं सब किरदार माजी के, सिपाही, बादशाह, खिलअत, नवादिर, रक्स मौसीकी, किसी के पाँव में पायल, धनक आंचल, किसी शमशीर की बिजली, किसी बरसात की बदली, किसी बारादरी में राग दीपक का, किसी सहने गुलिस्ता में कदम के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया अचानक जाग जाती है। ये मैंने एक मिनिएचर पेंटिंग को लाइव कर दिया है। ये देखिए, मिनिएचर पेंटिंग में आपने देखी होंगी सब चीजें होती है। किसी सहने गुलिस्ता में कदम के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया अचानक जाग जाती है। किसी गुमनाम कस्बे में कोई टूटी हुई मेहराब खस्ता हाल बेहुड़ी की झलक मादूम कर देती है। होटल, चाय खाने, बस के अड्डे, ढेर कूड़े के, कई सदियां गुजर जाती हैं सर से और कोई गुमगश्ता शहरे रफ्तगा बेदार होता है। इसी मंजर का हिस्सा बन के मैं तस्वीर हो जाती हूँ माजी में। मैं अक्सर आबनाए वक्त पर कागज की नाव डाल देती हूँ तो पानी अपना रास्ता मोड़ देता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, पानी अपना रास्ता मोड़ देता है। मैं जब चाहूं सलोनी, सांवली, नटखट मधुर यादें उठा लाऊं लड़कपन के घिरानों से। मैं जब चाहूं तो काली कोठरी में कैद, रंजीदा, पशेमा, जख्म खुर्दा सातों,
बीते दिनों को प्यार से छू कर दिलासा दूं, थपक कर लोरियां दूं, खूब रोऊं, शांत हो जाऊं। ये माजी मेरा माजी है, फकत मेरे तसर्रुफ में है, मेरी मिल्कियत है, मेरा विरसा है, न मेरा हाल पर बस है, और आने वाला कल भी किसने लिखा। क्या दस्तरस है, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आप जी और अता कीजिए और एक दो शेर सुना देती हूँ। तरन्नुम से उनसे कहा था नहीं, आप पूरी गजल सुनाइए। नहीं, खूब सारा वक्त है, आप सुनाइए बहुत सारा। तरन्नुम से गजलें सुनाइएगा, अता कीजिएगा जी। मैं ये कह रही थी कि अलीगढ़ के हवाले से शायरात के नाम तो आ गए, और एक इतना अहम नाम जो कि उर्दू अदब का दरख्शां सितारा है, हमारी अस्मत आपा, अस्मत चुगताई। उनके बगैर उर्दू अदब का तस्करा, शायरा तो वो नहीं थी, लेकिन क्या जबरदस्त उनकी कहानियां और अफसाने, और खासकर उनका नॉवल आप सब बहुत ही बाज़ौक़ कारी है। उनका जो टेहरी लकीर था वो अलीगढ़ पर ही बेस्ड था पूरा, और अलीगढ़ के जमाने का। तो वो एक ऐसा लेजेंड बन गया है वो नॉवल कि उसके बगैर उर्दू, मैं समझती हूँ कि उर्दू का बेहतरीन नॉवलों में से वो एक नॉवल है। कुर्रतुल ऐन हैदर का ताल्लुक उन्होंने अलीगढ़ में कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अलीगढ़ में रही बहुत है, और उनकी जो किताबें हैं, खासकर कारे जहां दराज है, जो उनका एक फैमिली सागा है, 3 जिल्दों पे या 4 जिल्दों पर मुश्तमिल, उसमें अलीगढ़, सर सैयद तहरीक, सबका इतना जिक्र है, क्योंकि उनके वालिद सज्जाद हैदर यलदरम अलीगढ़ में काफी अरसे तक रजिस्ट्रार रहे, और अलीगढ़ से उन्हें खास ताल्लुक था। तो मैं अपनी गजल सुनाती हूँ। कैसे स्वांग रचाए, कैसे स्वांग रचाए, हमने दुनिया दारी में सारी उम्र गंवा दी, औरों की दिलदारी में। क्या मतलब, हम भी कितने सादा दिल हैं, सीधी सच्ची बात करें, लोगों ने क्या कह डाला, लहजों की तहदारी में। क्या काफिया बरता है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। जब दुनिया पर बस न चले तो अंदर अंदर कुढ़ना क्या। ये गजल का लफ्ज नहीं है कुढ़ना, लेकिन मैंने कोशिश की है ना, खास तरह के अल्फाज आते हैं अशार में। जब दुनिया पर बस न चले तो अंदर अंदर कुढ़ना क्या, कुछ बेले के फूल खिलाएं, कुछ बेले के फूल खिलाएं, आंगन की फुलवारी में। जबरदस्त। आने वाले कल की खातिर हर हर पल कुर्बान किया, आने वाले कल की खातिर हर हर पल कुर्बान किया, हाल को दफना देते हैं हम, जीने की तैयारी। अरे वाह वाह हाल को दफना देते हैं हम, जीने की तैयारी में। कई दिनों से
जिस्म जहाँ पर एक बेकैफी छाई है, कई दिनों से जिस्म जहाँ पर एक बेकैफी छाई है, गुजर रही है रात सुनाओ, गुजर रही है रात सुनाओ, कोई गजल दरबारी में, क्या बात, गुजर न जाए रात सुनाओ, मैंने तसल्लुफ कर लिया अभी, गुजर न जाए रात सुनाओ, कोई गजल दरबारी में, तुम भी उन, अब पुराने जमाने की अभी नई मैंने गजल सुनाई कि हम जब स्टूडेंट थे तो क्या सोचते थे, क्या से क्या हो गए, कुछ इसी तरह का ये शेर है कि तुम भी उन बीते बरसों की कोई निशानी ले आना, मैं तुमसे मिलने आऊंगी, क्या बात, तुमसे बहुत उम्दा शेर है, आऊंगी, उसी बसंती सारी में उसी बसंती सारी में। और ये मेरा शेर जो है अक्सर लोग अब कोट भी करते हैं, क्योंकि मैंने एक ऐसे ही तरकीब इस्तेमाल की है कि जो कभी गजल में मुश्किल से ही आई होगी। और ये मैं इतने बरस बहुत साल बाहर रही हिंदुस्तान से, अपने वतन से दूर, तो उसकी यादें, उस ये पूरा उस शेर, उस तनाजुर में ये शेर देखिए कि अब हर साल हम लोग आते थे, हिंदुस्तान आते थे, तो अब के बार जो घर जाना तो सारे एल्बम ले आना, अब की बार जो घर जाना तो सारे एल्बम ले आना, मैं तुमसे अब की बार जो घर जाना तो सारे एल्बम ले आना, वक्त की दीमक लग जाती है, वक्त की दीमक लग जाती है, यादों की अलमारी में, यादों की, क्या अच्छा है, वाह वाह, क्या अच्छा है, वाह वाह वाह, दीमक लग जाती है यादों के, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैंने वाह वाह वाह, नहीं नहीं ये नजरा को बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो चाह रहे हैं और सुनाए, सच में और वक्त होता तो और बहुत सारा, नहीं नहीं बहुत 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 हो गया। अब हमारे पास अभी वक्त है तो हम ये करते हैं कि हम एक गजल सुम्बुल से और सुन लेते हैं। सबिहा, सुम्बुल एक गजल के चंद अशआर सुनाओ तरन, उसके बाद हम अपनी सदर साहिबा से गुजारिश करें। अगर वक्त नहीं हो तो सदर साहिबा से ही सुन ले, नजरा आपा बताइए। सुम्बुल साहब सुनाइए आप, सुना दो, सुना दो। अच्छा तो चलिए दो चार अशआर सुना दो तरन, कहीं से, एक गजल सुनाइए आप, मैंने बहुत अच्छा कम सुना है आपको। सुम्बुल, अच्छा चले, मेरे सामने एक गजल है, ये मैंने ये बहादुर शाह जफर की जमीन में है अजरापा, लेकिन काफी कोशिश की है मैंने बचाने की खुद को, कि बहुत ज्यादा ना आए, हालांकि कोई बुरी बात नहीं है अगर आ जाता रंग तो जी, लेकिन मैंने बचाया है खासा। और ये बिल्कुल आज के क्योंकि जैसा दौर है ना, बस उस ये समझ लीजिए बिल्कुल ये अशआर बिल्कुल फिट होते हैं उस पर जाकर, तो मैं पेश कर रही हूँ। इरशाद, इरशाद। अब हमारे पास है 10-15 हुए जी। बेकसी ज़िस्त में शामिल कभी ऐसी तो न थी, वाह वाह क्या बात है, बेकसी ज़िस्त में शामिल कभी ऐसी तो न थी,
बेकसी जीस्त में शामिल कभी ऐसी तो न थी, अब जो है कैफियत दिल कभी ऐसी तो न, वाह वाह, बहुत जो है कैफियत दिल कभी ऐसी तो न थी, सी तो न थी। यूं तो हर गाम पा खिलते रहे जख्मों के गुलाब, यूं तो हर गाम पा खिलते रहे जख्मों के गुलाब, जिंदगी सूरत बिस्मिल कभी ऐसी तो न थी, बहुत अच्छा, जिंदगी सूरत बिस्मिल कभी ऐसी तो न थी, अब जो है कैफियत दिल कभी ऐसी तो न थी। और ये शेर भी बिल्कुल जाता है उसी तरफ। मेहरबान पहले भी कब थी मेरी तकदीर मगर, मेहरबान पहले भी कब थी मेरी तकदीर मगर, जैसी है आज ये गाफिल कभी ऐसी तो न थी, जैसी है आज ये गाफिल कभी ऐसी तो न थी, अब जो है कैफियत दिल कभी ऐसी तो न थी। मुश्किलें राह वफा में तो हमेशा आई, मुश्किलें वफा में तो हमेशा आई, फिक्रे दुश्वार ये मंजिल कभी ऐसी तो न थी। सबिया, अब आपको मैं यहाँ रोकती हूँ, अब हम अपनी सदर साहिबा को वक्त देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, जी बिल्कुल 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 तुमने मेरी बात मानी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अपनी सदर महफिल आसिफ इजहार साहिबा की तरफ आते हैं। आसिफ पापा बहुत जमाने तालिब इल्मी से अफसाने लिख रही हैं। इनकी दो अफसानवी मजमूए आ चुके हैं और दो, अब शायरी भी जब से करती थी लेकिन अब इस तरफ शायरी ज्यादा कर रही हैं और इनके दो मजमूए शायरी के आ चुके हैं। एक बहुत ही, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटा सा 2 मिनट में लूंगी, अलीगढ़ का एक और ट्रेडिशन है, वहाँ खवातीन की एक अंजुमन है बज़्म अदब, जो मेरी वालदा ने 1962 में कायम की थी। उसके बाद उसको खलील साहब की बेगम चलाती थी, राशिदा आपा, उनका भी अब इंतकाल हो गया और अब हमारी आसिफ पापा उसकी सेक्रेटरी, बहुत ही फाल सेक्रेटरी है और इल्म अदब से इनका पुराना ताल्लुक है। बहुत ही सॉफ्ट किस्म की, मतलब बहुत ही खूबसूरत बोलने वाली और बहुत ही नर्म मिजाज खातून है। तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने कलाम से मैं मुस्तफीद करें और कुछ अल्फाज कहें हमारे इस मुशायरे के बारे में। मोहतरमा आसिफ इजहार साहिबा अलीगढ़ से तशरीफ लाई, वहीं मौजूद हैं इस वक्त। हम तो सब अलीगढ़ से बाहर हैं, सबिया और वही अलीगढ़ में है इस वक्त। आसिफ पापा नहीं, लेकिन आप अलीगढ़, हम तो अलीगढ़ में ही महसूस करते हैं आपको। चलो कोई, आसिफ पापा से दरख्वास्त, बस अदब सदर मशायरा, सर सैयद का ये मशायरा बहुत कामयाब जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। लालो गौर फाउंडेशन के मुंतजिमीन की मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मशायरे की सदारत के लिए मुंतखब किया। दरअसल उर्दू मोहब्बत करने वालों की जबान है। हम शायर और अदीब जमाने भर में प्यार और मोहब्बत और भाईचारे की खुशबू फैलाने का ही काम कर रहे हैं। ऑनलाइन मराकिज ने तो जैसे तमाम दुनिया को एक ही लड़ी में पिरो दिया है। एक मतला और चंद अशार हाजिर खिदमत है, वो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। लिपट जाती है दामन से किसी भी राह से गुजरूं, लिपट जाती है दामन से किसी भी राह से गुजरूं, के सारे शहर में फैली है उसकी याद की खुशबू। क्या खूबसूरत बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक शेर और देखिएगा कि दस्ते कूज अगर एक दिन मुझे इतना तो बतला दे,
दस्ते कुछ अगर एक दिन मुझे इतना तो बतला दे, बिखर कर टूट जाना था तो फिर सांचे में क्यों ढाला। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब। और एक शेर और हाजिर है कि आशिकी के सब मंजर वक्त ने बदल डाले। क्या बात है, आशिकी के सब मंजर वक्त ने बदल डाले, अब महकते खत लेकर नामाबर नहीं आते। अब तो खत ही नहीं आते। और एक गजल के चंद अशार में पेश कर रही हूँ कि हंसी मंजर दमकते चांद तारे दिल दुखाते हैं। वाह वाह, हंसी मंजर दमकते चांद तारे दिल दुखाते हैं, जरा भी कुछ नहीं भाता जब अपने दूर जाते हैं। वाह वाह वाह। और ज़बां खामोश है लेकिन हर एक चेहरा है आईना। वाह, ज़बां खामोश है लेकिन हर एक चेहरा है आईना, दिलों की बात सब चेहरों के आईने सुनाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। और शेर अर्ज है कि जहाँ चाहत की ठंडी छाँव थी कच्चे मकानों में, जहाँ चाहत की ठंडी छाँव थी कच्चे मकानों में, यहाँ पत्थर की नगरी में वो गाँव याद आते हैं। पत्थर की नगरी में वो गाँव याद आते हैं। और अजब एक खौफ का माहौल तारी है हर एक जानिब। अजब एक खौफ का माहौल तारी है हर एक जानिब, घरों से लोग बाहर भी बड़ी दहशत में जाते हैं। सही बात, वाह 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 वाह, बिल्कुल आजकल के माहौल पर हस्बेहाल वाह। हमेशा उनके तानों से बिखरते टूटते हैं हम, हमेशा उनके तानों से बिखर कर टूटते हैं हम, पलट कर जाने क्यों अब तक नहीं पत्थर उठाते हैं। बना लेते मकान छोटा सा अपना काश ये खुद भी, बना लेते मकान छोटा सा अपना काश ये खुद भी, हमारे आपके जो ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं। और आखिरी शेर देखिएगा, हमारे आपके जो ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं और हम अपनी उम्र की अब आखिरी सरहद पे आ पहुंचे, हम अपनी उम्र की अब आखिरी सरहद पे आ पहुंचे, चले आओ हमारे आखिरी लम्हे बुलाते हैं। सलामत रखे अल्लाह आपको। हंसी मंजर दमकते चांद तारे दिल दुखाते हैं, और जरा भी कुछ नहीं भाता जब अपने दूर जाते हैं। क्या कहने, वाह वाह। और इजाजत हो तो गजल और अरे बिल्कुल आसिफ आप सुनाएं। जी जरूर। एक गजल की चंद अशार पेश कर रही हूँ कि बढ़ाकर कुर्बते तुमने ताल्लुक तोड़ रखा है, बढ़ाकर कुर्बते तुमने ताल्लुक तोड़ रखा है, मगर हम हैं कि दिल का रिश्ता अब तक जोड़ रखा है। और नतीजा आहुजारी का अभी तक कुछ नहीं निकला, नतीजा आहुजारी का अभी तक कुछ नहीं निकला, खुदा के रूबरू अब तो मुकदमा छोड़ रखा है। खुदा के रूबरू अब तो मुकदमा छोड़ रखा है, और रवा रहती है रुखसारों पे अश्कों की जो लड़ियां, रवा रहती है रुखसारों पे अश्कों की जो अब लड़ियां, सुना है जब्त गम से उससे रिश्ता तोड़ रखा है। क्या कहने, क्या कहने। सरक जाए न सर से इज्जत व नामूस की चादर, सरक जाए न सर से इज्जत व नामूस की चादर, खामोशी से रुख अपना यूं उधर से मोड़ रखा है। और शेर देखिएगा कि हर एक माथे पे सलवट है, फसुर्दा है हर एक चेहरा, हर एक माथे पे सलवट है, फसुर्दा है हर एक चेहरा, लबों ने मुस्कुराने का सलीका छोड़ रखा है। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मक्ता हाजिर है कि बहुत उलझा के दुनिया के मसाइल में हमें आसिफ, बहुत उलझा के दुनिया के मसाइल में हमें आसिफ, खुदा ने आजमाइश को जहां में छोड़ रखा है। और बढ़ाकर कुर्बते तुमने ताल्लुक तोड़ रखा है, मगर हम है कि दिल का रिश्ता अब तक जोड़ रखा। बहुत अच्छा। क्या बात। एक छोटी सी नज्म और मैं पेश करना चाह रही हूँ। जी 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 जी।
शेर का नज्म का उन्वान है बुझ जो बन गए हैं जी। सुनहरे कुंदन थे, चांदनी सी रातें थी, क्या बात है, था हर लम्हा, रेशमी था हर लम्हा, साथ साथ जब हम थे, रंग रूप खिलता था, क्या बात, आईना मचलता था, आंखें झिलमिलाती थी, रोशनी लुटाती थी, लब के खिलखिलाते थे, गीत गुनगुनाते थे, रूह तक थिरकती थी, एक सितार खुशियों का घर में बजता रहता था, बजता रहता था। क्या खूबसूरत मंजर, क्या अच्छा है, एक सितार खुशियों का घर में बजता रहता था, और घर का जर्रा जर्रा तक रक्स करता रहता था। क्या हुआ, जाने क्या हुआ, लेकिन वक्त ने जो करवट ली, हो गए जुदा हम सब। अब न दिन सुनहरे हैं, अब न चांदनी रातें, हर तरफ है तन्हाई, जानलेवा सन्नाटा, हसरतें लरसती हैं, हसरतें लरसती हैं, चौखटें तरसती हैं, कोई सरसराहट हो, कदमों की जो आहट हो, कोई छू ले जब आकर, कोई छू ले जब आकर, जान हमें आ जाए, बुझ जो बन गए हैं, बुझ जो बन गए हैं। क्या कहने का, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। आसिफ पापा, चंद मिनट हैं, आप कुछ हमें कुछ बातें कीजिए हमसे इस मुशायरे के बारे में, या मुंतज़मीन जो चाहें, क्योंकि मैंने अपने वक्त पर तकरीबन मुशायरा खत्म कर दिया। लालो गौहर अदबी फाउंडेशन की जानिब से आज का ऑनलाइन मुशायरा, सैयद मुशायरा बहुत कामयाब रहा और बड़ी खुशी की बात है कि हम सब अलीगढ़ के लोग सब जुड़ गए। मैं लालो गौहर फाउंडेशन के मुंतज़मीन और तमाम अपनी शायरात का बहुत बहुत उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। माशाल्लाह सब ने बहुत उम्दा कलाम सुनाया। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत कामयाब और बहुत सटीक महफिल, और कहना चाहिए कि बड़ी तमानतों, बड़ी अदबी तमानतें मैसर आई, और यकीन जानिए कि ये इस कदर मयारी कलाम और जो हमेशा यादगार कलाम सुनने को मिला, और मैं बहुत ही ममनून हूँ तमाम अपने मेहमानान का कि इस में शिरकत फरमा कर हमारे लालो गौहर के वक़ार को बेपनाह जो है उसको उसके हुस्न से मालामाल किया है। हमें उम्मीद है, दरअसल ये कोशिश है कि अलीगढ़ की अदबी सरगर्मियों को जो है एक दस्तावेजी हैसियत से महफूज कर देने की उसकी पहल है, और हम आइंदा भी आप लोगों के मुखलिसाना इश्तराक से इसमें और मशवरों से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें अगर संगीता श्रीवास्तव साहिबा मौजूद हों तो तशरीफ लाएं और इदारे की जानिब से शुक्रिया अदा करें। गालिबन नहीं है तो मैं हम सुंबुल साहिबा से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो कुछ अपने इज़हार ख्याल के साथ महफिल का इख्तिताम सदर मोहतरमा की इजाज़त, और मैं हमारी नाज़रीन मोहतरमा का दिल की गहराइयों से तमाम मेहमानान के साथ भी बहुत ममनून मशकूर हूँ। यकीन जानिए मेरा अपना एक शेर जो इस लालो गौहर का टाइटल बना कि तेरा मिलना है मिसले लालो गौहर, मिसले लालो गौहर तेरा मिलना, तो आप तमाम अहबाब और तमाम मोहसिनीन का मिलना लालो गौहर की खुशबख्ती से मैं ताबीर करता हूँ, और हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से आप लोगों की मोहब्बतें और ताउन मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुमुल साहिबा कुछ अल्फाज से अपने नवाज। जी गौहर साहब, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जो आज की ये नशिस्त हुई है, बेपनाह कामयाब नशिस्त है ये, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। देखिए मैं देखती हूँ कि काफी ऑनलाइन जो मुशायरे हो रहे हैं तो काफी भीड़ दिखाई देती है, लेकिन मैं सच कह रही हूँ बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि हम लोग इतने मुख्तसर, मतलब देखा जाए तो बहुत ही मुख्तसर लोग थे, लेकिन इतनी अच्छी महफिल रही है और इतना अच्छी तरह अच्छा कलाम जो है सामने आया, और सारे इतने हमारे जो ये अली जो सारी खवातीन जो जुड़ी और एक से एक जाहिर है, और जो आपने ये
पहल की है, जो ये कदम उठाया है कि दस्तावेजी हैसियत आप इसको देंगे, और ये इकाइयां आपने जो खोलने का जो ये सिलसिला बनाया हुआ है, भोपाल में करा है, अलीगढ़ में, तो ये मैं बहुत खुशबख्ती की बात है हम लोगों के लिए भी कि ये आइंदा भाई इस प्लेटफॉर्म से, लालू गौहर के प्लेटफॉर्म से जो है इतना अच्छा काम होने जा रहा है। और हम लोग बिल्कुल हम जितने भी यहाँ इस वक्त आपकी महफिल में मौजूद हैं, तो जब भी आपको जरूरत होगी आप आवाज देंगे तो हम लोग हाजिर हैं, और आपके इस काम में हम जो है हाथ बटाएंगे। जाहिर है इसमें तो अपने अलीगढ़ की भी शान है, तो हम तो चाहेंगे कि ये बिल्कुल ऐसा हो। और निजामत इतनी जबरदस्त थी, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अजरा आपा की निजामत में इसीलिए चाहती थी, मेरे पीछे पड़े थे सब लोग के निजामत करें, निजामत करें। मैंने कहा नहीं, अजरा आपा करेंगी निजामत, तो क्योंकि मैं चाहती थी कि अजरा आपा ने जो काम आज किया कि ये सारे जो हमारी जो रफ्तगा जो थे उनका जिक्र किया, और जो शायरात उनका जिक्र बहुत जरूरी था, साइदा आपा का, जाहिदा आपा का। और मैं तो कहती कि अपनी जो वालिदा मोहतरमा का भी अच्छे से करना था, और मैं बोल नहीं सकी बीच में, क्योंकि मैंने कहा क्या बोलूं, बहुत ज्यादा जी नहीं, मैं चाहती हूँ अजरा आपा आप उनके बारे में भी थोड़ा सा भी बता दीजिएगा। और मैं वैसे लालू गौहर की बहुत मशहूर हूँ कि ये इतनी खूबसूरत महफिल उनकी वजह से यहाँ पर सजी, और आइंदा भी ऐसी महफिलें सजती रहेंगी, और मुझे बहुत खुशी है। और नईमा आपा देखिए, हमारी नईमा आपा जो है आई, इतनी अलील रही इस बीच में, लेकिन देखिए कितनी हिम्मत के साथ आई, और इतनी अच्छी शायरी हमें सुनने को मिली। अजरा आपा की तो शायरी है ही इतनी अच्छी, हम तो सुनते रहते हैं, और बहुत हमें अच्छा लगता है। मैं बार बार यही तभी फोर्स कर रही थी, नहीं अजरा आपा को बुलाइए, अजरा आपा को बुलाइए, मुसलसल कह रही थी गौहर साहब से गौहर साहब से कि नहीं नहीं निजामत वही करेंगी। मैंने कहा मैं तैयार कर लूंगी, मैं तैयार कर लूंगी। जी जी जी, यकीन जानिए कि आपकी जो निजामत बहुत अच्छा। नहीं, अलीगढ़ का मामला अलीगढ़ का था ना, कैसे नाम? जी जी, वो सही बात है, बिल्कुल जो एक दस्तावेजी कॉन्सेप्ट था, उसको दस्तावेजी कॉन्सेप्ट दिया आपने, माशाल्लाह बहुत 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 बहुत, यही सबसे बड़ी बात थी, और इसी की जरूरत थी, और वो चीज मैसर आई माशाल्लाह। और गौहर साहब मैं चाहती हूँ कि अजरा आपा थोड़ा सा अपनी वालिदा मोहतरमा से मुतालिक बताएं। आप बिल्कुल ये जिक्र कर दिया बस सब कुछ। नहीं मेरी वालिदा सैयदा फरद, मेरी वालिदा सैयदा फरद शायरा थी, उनकी मैंने अभी कुल्लियात शायरा की, बहुत ही सूफी मनुष खातून थी, ज्यादा उनको शोहरत की कुछ ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छी शायरी करती थी, और बज़्म अदब कायम की थी उन्होंने, जिसमें खवातीन आके अपना कलाम, अपने अफसाने, और कितनी लोगों की मतलब बहुत सारे मशहूर नाम वहीं से निकले हैं बज़्म अदब से। उस बज़्म अदब में हमारी अस्मत चुगताई भी आती थी। मुझे याद है बचपन में बहुत, जब शुरू में बज़्म अदब थी तो कुर्रतुल ऐन हैदर भी आई थी, मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे याद नहीं है, मगर ये था कि हाँ कोई बहुत स्मार्ट सी खातून आई है। तो बहरहाल अलीगढ़ के हवाले से अब मैं शुक्रिया आपका अदा करती हूँ, और इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रिजवान बेटे, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जल्दी हम इंशाल्लाह एक नई शुरुआत आप तमाम की मशवरे से। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज। बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत अच्छा वक्त, बहुत अच्छा रहा सारा प्रोग्राम, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, यही कहते हैं एकेडमिक मूड का प्रोग्राम, बहुत एकेडमिक, बहुत शानदार, बहुत तो इसको बंद करना होगा ना, है इसको बंद करना होगा ना। है बस हो गया।